بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب قلم کے پلیٹ فارم سے جو ہم لوگوں نے پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے بہت ہی بزرگ شاعر رحمان خاور صاحب کے پاس آئے ہیں اور آج ہم سے کچھ غیر رسمی سی گفتگو کریں گے، بے تکلف گفتگو۔ سامعین و ناظرین، ارباب قلم کینیڈا میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں انور کاظمی اور میں رکن ہوں اس تنظیم کا۔ اس میں میرے علاوہ فیصل عظیم ہیں، سکندر ابوالخیر صاحب ہیں، جنید صاحب ہیں، اور آج ہم بیٹھے ہیں ایجکس میں، جو کہ کینیڈا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور یہ پروفیسر رحمان خاور صاحب کا دولت قضا ہے جہاں آج ہم بیٹھے ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور آج ان سے ہم ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی ادبی سفر کے بارے میں، ان کی شاعری اور دوسری ادبی خدمات کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ اردو شاعری اور اردو ادب پر ان کے دوسرے موضوعات پر ان کے کیا خیالات ہیں۔ تو اس پروگرام میں ایک بات یہ کہتا چلوں کہ چونکہ یہ کووڈ کا زمانہ ہے، لہٰذا ہم نے اس کا خیال رکھا ہے، پروٹوکول کا خیال رکھا ہے، سوشل ڈسٹینس رکھی ہے، اور اس میں کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، بس یہ ہم 4-5 لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور آج ستمبر کی 12 تاریخ ہے، سال 2021 کی اتوار کا دن ہے، اور اب اس کے بعد فیصل عظیم آپ کے سامنے رحمان خاور صاحب کا تعارف پیش کریں گے۔ ہمارے آج کے جو موضوع ہیں ان کا نام ہے پروفیسر ذل الرحمان خان، مگر ادبی ہوتے ہم اور آپ انہیں ان کے تخلص سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، یعنی رحمان خاور صاحب، پروفیسر رحمان خاور صاحب۔ رحمان خاور صاحب کا ادبی سفر بھی کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے، اور ان سے فیض اٹھانے والے یعنی ان کے شاگرد بھی ادبی اور غیر ادبی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کہ وہ استاد، شاعر ہیں اور پروفیسر تھے۔ 1937 میں رامپور میں مولوی بننے خان سرخوش شادانی صاحب کے گھر پیدا ہوئے۔ والد سرخوش شادانی صاحب اور بڑے بھائی انجم شادانی صاحب خود بہت اچھے شاعر جی رسل شعر۔ اچھا، تو یعنی آپ کے گھر، آپ کا جو خانوادہ ہے وہ ادبی خانوادہ ہے، 2 بھائی، والد اور پھر خود ابھی شاعر۔ خاور صاحب علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ پاکستان ہجرت کی، وہاں کی گرم سرد دیکھنے کے بعد اب کینیڈا میں مستقل سکونت پذیر ہیں۔ اب تک 7 کتابیں نظر یہاں پر آ چکی ہیں: غزل، نظم، گیت، دوہے، کویتائیں، قطعات، حمد، نعت، رباعی، منقبت، سلام، افسانے، تنقید، شخصی خاکے، طنز و مزاح۔ آپ نے ان سب اصناف سے انصاف کیا ہے، مگر غزل، دوہے اور گیت آپ کی خاص پہچان ہے۔ یوں تو خاور صاحب کو میں نے کراچی میں بہت سنا اور پڑھا، مگر کیا ہوا کہ جب میں کینیڈا آیا تو ایک محفل میں کسی نے آواز دی، ہاں بھائی فیصل۔ میں وہاں میں نے پلٹ کے دیکھا، ایک بارش بزرگ تھے۔ جب سلام دعا ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ ایک نئی گاڑی کے پیچھے ہمارے دراصل پرانے رحمان خاور صاحب خوشی ہوئے۔ تو اس زمانے میں جب تک ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے، تو ہم نے کبھی گاڑی میں نہیں دیکھا، کینیڈا آنے کے بعد ہم نے ان کی گاڑی بھی دیکھی۔ خاور صاحب بڑے زندہ دل اور عاشق مزاج رکھنے والے بزرگ ہیں۔ ان کا دل سدا کا جوان ہے، اور یہ رنگ ان کے مزاج اور باتوں میں خوب خوب جھلکتا ہے۔ اس میں کچھ ہاتھ علی گڑھ یونیورسٹی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر، اسی لیے لوگ ان سے گھبراتے بھی ہیں۔ باطن کو چہرے پر سجانا بڑے دل گردے کا کام ہے، اور یہ عمر قید سے آزاد معصومیت آپ کو خاور صاحب کے یہاں ملے گی۔ ان کے مزاج کی بے ساختگی، شگفتگی اور رنگینی محفلوں کو بعض اوقات ایسا غیر روایتی رنگ دے دیتی ہے کہ میزبان کے چہرے پر ہوائیاں اور سامعین کے ہونٹوں پر تتلیاں ہوتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کے 2 شعر ہیں: رہ جائے گا تو بزم میں حیران و پریشان، میں تجھ کو چلا جاؤں گا آئینہ دکھا کر۔ جو ہم ہیں ہم نے تمہیں بس وہی بتایا ہے، ہمارا ایسا تعارف بھی کچھ برا تو نہیں۔ خاور صاحب کی شاعری میں واردات ہے، تجربات ہیں، اور وہ خود جس روایت کا تسلسل ہیں اس کی چاشنی بھی ہے اور اس میں تغزل بھی ہے۔ گھر کے اندر آ کر کیوں دیواروں میں کھو جاتا ہوں، گھر کے اندر آ کر کیوں دیواروں میں کھو جاتا ہوں، اور ہی کوئی دروازہ ہے شاید باہر جانے کا۔
محبت کے تقاضے اور کچھ ہیں، زمانہ چاہتا ہے اور ہی کچھ. اچھا، موسیقی کا شوق تو خاور صاحب کو بہت ہے. جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح بات سمجھتے ہیں. موسیقی کا شوق اور ان کی تربیت میں جو غنائیت ہے وہ ان کے گیتوں میں بھی گنگناتی ہے. روایتی شاعری کی توقع رکھنے والے جب ان کو سنتے ہیں تو وہ خاور صاحب ان کو چوکاتے رہتے ہیں، اور وہ پرانے مضامین بھی کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ ان میں نیا پن محسوس ہوتا ہے. ان کا کلام دلوں میں اترنے والا ہے. سننا شرط ہے. میرے شعروں کو نہ سننے کی قسم کھائی ہے کیا، رنگ خوشبو روشنی کی بات سنتے کیوں نہیں. اور ایک داغ بے گناہی کے سوا میرا دامن ہر طرح سے پاک ہے. محبت میں دل و جان کا زیاں ہے، مگر یہ ہوش ہی ہم کو کہاں ہے. کیا زبان کا شعر ہے، واہ. رحمان خاور صاحب کا کلام اور ریاضت انہیں جس مقام پر فائز کرتے ہیں اس کی قدر اور اعتراف ہم پر واجب ہے. آج کی محفل پروالہ کام کینیڈا کے تحت اسی سلسلے کی کڑی ہے. اسی سلسلے میں میرا ہم یہاں بیٹھے ہیں. وہ بڑے محبت کے آدمی ہیں. بے خیالی سے مزین شخصیت اپنی جگہ ہے، مگر ہر ایک کا خیال اور مزاج پرسی کی عادت اپنی جگہ. آج ہم ان سے ملنے ان کے گھر آئے ہیں تو ان کے اس شعر پر بات مکمل کرتا ہوں. ہم سے درویشوں کو جانے کی کہیں فرصت کہاں، خود ملے ہم سے وہ آ کر جس کو ہم سے کام ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک غیر روایتی سی محفل ہے، ہم بیٹھ کے گفتگو کریں گے. خاور صاحب، ہم لوگ تو بے تکلف ہوں گے مگر آپ خیال رکھیے گا. تو سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو خاور صاحب، آپ خود اپنے بارے میں بتائیے کچھ ہمیں، پھر ہم اس سلسلے کو اپنے ادبی سفر کے بارے میں. ادبی سفر کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ میرا پورا خاندان شاعری سے متعلق تھا. بڑے بھائی تھے، تین بھائی تو کہتے ہی تھے. ایک ابھی حیات ہے، باقی سب اللہ پیارے ہو گئے. کوئی افسانے لکھے جائے، کوئی یہ وہ، باقی اور بھی مچھلی کے شکار اور یہ وہ دنیا بھر کے اور خرافات. والد شاعر تھے. عزیز و قارب رامپور تیسرا اسکول مانا جاتا تھا اردو شاعری کا. لاہور، دہلی اور لکھنؤ کی تباہی کے بعد تقریباً لوگ شاعر آ کے رامپور میں رہے، اور ان کو نوازا غالب تک آئے. یوسف علی خان ناظم ان کے شاگرد تھے، اور غالباً نظام رامپوری بھی جو یوسف علی خان ناظم کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے غالب سے متعلق تھے. نظام ہمارے یہاں رامپور کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں اچھے اچھے شاعر ادیب یہ وہ پیدا ہوئے اور اپنا نام بھی بنایا، انہوں نے کمایا. تو رامپور تو ایسی جگہ ہے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے وہ شاعری کرتے تھے، اور چار بیت کا بہت زیادہ وہ تھا. میں نے روایت تھی رامپور میں دبتے گانے کی، تو اس کے شاعر جو ہوتے تھے وہ ان پڑھ لوگ عموماً ہوتے تھے اور بڑے وزن میں ہوتا تھا. مثلاً مجھے ایسے ہی ایک شاعر کا چار بیت کا ایک دو لائن یاد آئی، دبتے گائی جاتی تھی اور اس طرح کی ہوتی تھی. تو آپ نے رامپور سے ہی جی لکھنا شروع کیا؟ تو رامپور تو بنیاد ہے ہماری، ظاہر ہے کہ وہاں پیدا ہوا. اسکول میں پڑھتے تھے جب پہلے اول دوم سوم ٹائپ کی، تو ہماری آواز اچھی تھی تو ہم سے پروگراموں میں ٹیچرز ہے نا ہم سے نظمیں اور یہ نعتیں وغیرہ پڑھواتے تھے. اور اتفاق دیکھیے کہ انہی ٹیچروں میں سہار رامپوری ایک ہوتے تھے. ماڈرن اسکول تھا اس میں، تو وہ بعد میں ہمارے استاد وہی بنے بڑے سہار رامپوری شاعری میں بڑے شاعر تھے وہ اور اچھے شاعر. مگر یہ کہ وہی رہے ہیں وہاں. اور اس کے علاوہ ابتدائی جو غزلیں 1952 9th کلاس ہے میرا 9th کلاس جی، تو ہمارے پرسنٹ ٹیچر تھے، ان کا نام تھا سید ہادی حسن صاحب،
اور وہ پرچن پڑھاتے تھے. کبھی ان سے شعر ان کا نہیں سنا, نہ یہ معلوم ہوا کہ یہ شاعر ہیں. تو بیٹھے ہوئے تھے ہم, تو ہم نے 2 غزلیں ان کے سامنے رکھ دی کہ سر اس کی اصلاح کر دیجیے. اب یہ سوچے, یہ دھیان میں بھی نہیں تھا کہ شاعر ہے یا نہیں. انہوں نے بڑی عمدہ کی اور ایک شعر اس میں عطا بھی کیا. وہ غزل تو کہیں کھو گئی جو, لیکن کہ ان کا جو عطا کردہ اس غزل کا شعر تھا وہ یاد ہے. اپنی غزل کافی کھو گئی. دوسری غزل جو ہے اسی رات اسی شام کو مشاعرہ بھی پڑا تھا. سنائیے وہ شعر, سنائیے جو یاد ہے. ہاں, پھر تم کو میرے عشق پہ حیرت نہیں ہوتی, یہ ان کا حادثہ تھا. پھر تم کو میرے عشق پہ حیرت نہیں ہوتی, اپنے کو اگر دیکھتے تم میری نظر سے. اس زمین میں میں نے میری جو غزل انہوں نے اصلاح کی تھی وہ جنتان کو گئی تھی. یہ آپ کی بالکل پہلی غزل تھی؟ نہیں, غزلیں تو بہت تھی, اصلاح پہلی مرتبہ ہوئی. اچھا, تو مطلب آپ بغیر, آپ نے اور اس وقت تک مشاعرے بھی نہیں پڑھے, مشاعرے میں جاتے تھے. آپ کو اس اصلاح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, آپ نے کیوں ان کو دکھائی؟ مطلب بھائی اصلاح کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, اس میں گڑبڑ شڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. اور ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ اس میں بیر وزن سے بھی کچھ گڑبڑ ہو, لیکن یہ ضرور تھا کہ مشاعروں میں جاتے تھے بہت چٹپٹ سے. خود ہمارے گھر میں بیٹھتے تھے, شاعر آتے تھے اور بہت پروگرام بھی ہوتے تھے. تو وہ ایک الگ بات تھی. لیکن جب ہم نے سوچا ایک مشاعرے کے لیے ہمیں انوائٹ کیا ہمارا دوست نے اپنے گھر کے لیے, ڈاکٹر حامد رام پوری تھے, انہوں نے کیا. تو ان کے بیٹے سے دوستی کی جو اس میں جو سے معاملہ یہ شاعری کرتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ وہ. تو ہم نے 2 غزلیں وہی حاجی حسن صاحب اپنے پرشین ٹیچر سے کروائی اصلاح, اور شام کو مشاعرے میں ایک قصہ بھی پڑھا اس میں, اس کو کوئی اصلاح نہیں چاہیے. تو اس پہ ایک بڑے استاد شاعر نے سر محفل آبجیکشن بھی کیا, مگر وہ غزل جو تھی خوب چلی. آواز آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کیسی تھی. تو آپ نے باقاعدہ شاگردی کی؟ جی باقاعدہ چلتی رہی وہی شہر رامپور آپ نے. اس کے علاوہ جو ہے کبھی کبھی ہمارے انجم شادانی پاکستان آئے ہوئے تو والد کا انتقال سن 50 میں ہوا, تو 3-4 54 میں یہ آئے. 1-2 غزلیں انہوں نے بھی دیکھی, تو اس میں اشعار بھی شامل کی اپنے. کچھ اپنے والد اور انجم شادانی صاحب ان کی شاعری کے حوالے سے بتائیے. انجم شادانی وہاں شاعر تھے استاد رشید رامپوری, ان کے شاگرد تھے, اور وہ سلسلہ داغ تک شاگردوں کی ٹیمیں مشاعروں میں کافی وہ ہوتی تھی گویا. اور میں اپنے استاد کا واحد شاگرد رہا, واحد اکیلا شاگرد تھا. وہ تو سر آپ سر رامپوری صاحب جو استاد تھے ان کے حوالے سے بتانا. آپ کے جو والد والد ہمارے سرخوش شادانی وہ پڑھاتے تھے اردو پرشین اور عربی بہت سی زبانوں کے تھے, ماہر تھے وہ, لیکن شاعری اردو پرشین میں کرتے تھے. اور ان کی شاعری چھپتی بھی تھی بڑے بڑے. ایک تو رامپور سے ہی نیرنگ ایک بڑا پرچن کرتا تھا نواب رامپور کی سرپرستی میں. اس کے علاوہ لاہور سے امتحان بھی کوئی پاس کیا تھا انہوں نے, وہاں جا کے رہے لاہور رامپور. ان کا کوئی دیوان چھپا ان کا؟ جی ہاں, یہ ہے. یہ بتائیے شاگرد اور استاد کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں, تو آپ خود ماشاءاللہ سے یہاں بہت سے لوگوں کو کلام کی اصلاح دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گائیڈنس فراہم کرتے ہیں, شاعری کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی شاعر کے آنے پہ آپ نے کہا یار یہ کیا مصیبت آ گئی؟
किसी शागिर्द की? हमें खुशी होती है कि एक बहाने में लोग अब यहाँ से आगे वहां से ट्रांसफर हो गए, यहाँ तो कोई आता भी नहीं, बुलाओ भी नहीं है। आपके शागिर्द यहाँ से कनाडा में या पाकिस्तान में भी आपके हैं? हाँ, पाकिस्तान में मैं जब इब्तिदाई थी शुरू में ही, तो अच्छे खासे बुजुर्ग किस्म के शायर मुझसे मशवरा करते थे, तो बस वो दोस्ताना मशवरा जिसे कहते हैं। तो और ये जो हम बेतकल्लो किस्म के आदमी थे, हमारे पूरे भाइयों का ऐसे चिट्ठा था, तो एक आध तो दादाओं में मशहूर थे, तो उनके रोब इसमें भी था कि कोई इनके भाई की तरफ उल्टी सीधी बात ना करे। अलीगढ़ के माहौल ने आपकी शायरी पर नहीं, क्या असर डाला? वहां मैंने और बहुत प्रोग्राम की, ज्यादा दिन रह नहीं सका उसकी वजह ये कि 1 साल के बाद मुझे बरेली में एक लड़का कम हो रहा है, में टूट जाएगा, और ये वो वसीम बरेली, जिनको आप जानते हैं, बड़े शायर, उन्होंने मुझे बुला लिया कि तुम जो मेरे दोस्त हो और ये हो, और एक आध और हमारे रामपुर के भी जो थे उसमें स्टूडेंट थे वो, तो मैं बड़ी की वजह से आ गया, 1 साल रहा। तो अलीगढ़ का कोई वाकया, कोई मजेदार वाकया? नहीं, जो सुनाने के काबिल भी हो। अच्छा, आपने अलीगढ़ का जिक्र आया, आपने डिग्री वहीं से की थी? डिग्री मैंने बीएड किया हूँ, और बीएड के बाद एमए में मुझे उन्होंने, मैंने वसीम बरेली का हवाला दिया था कि यहाँ एक लड़का बरेली तालीम में कम हो रहा है, तुम कुर्बानी दो और अलीगढ़ से। हालांकि मुझे बड़ी तकलीफें उठाने पड़ी। खार साहब, आपने रामपुर में भी मुशायरों में भी थोड़ा बहुत जो भी हिस्सा लिया, शायरी के वहाँ से शुरू की, बहुत लिया, फिर उसके बाद आप कराची आ गए, वहाँ भी आपने, तो आपने कुछ क्या, आप इन दोनों को अगर तकाबुल करें तो आपने क्या फर्क पाया, इसमें कोई पाया या नहीं? हाँ, पाया तो क्या फर्क आपने महसूस किया? भाई रामपुर जो है शायरी के मामले में बड़ा समझदार है, और फिर फिक्रवादी के मामले में भी। यहाँ ऐसा नहीं होता था, सुनते थे लोग, शायरी भी अच्छी करते थे, सब बातें कराची में, लेकिन अमन पसंदी वहां तो चाकू भी भूल जाते थे। हाँ, रामपुर में चाकू भूल जाते। तो ऐसी सूरत थी यहाँ, और वहां में ये था, तो हाँसी रात के बाद जो होता था ना, मुशायरे के बाद जो बैठक होती थी, उस्तादों को वो सब लोग, उसमें जो लतीफे हो, किस्से हो, हमने शुरू में सुनाए, 100 तो सुनाए होंगे, वहां के सहर अंसारी को याद होंगे, हमें याद नहीं है। ऐसे हमारा अगला प्रोग्राम उनके साथ है, पूछेंगे उनसे। हाँ, उनसे उनको याद होंगे, क्योंकि हम आने के बाद मैं मदनी साहब के साथ, प्रोफेसर जमील अख्तर बचपन के साथ ही मेरे, उनके साथ उठना बैठना मेरा। अच्छा, मैं भी चक्कर वो जो, चूंकि हम शुरू की बात करें, इब्तदाई बात करें, तो इब्तदाई बातों में एक बड़ी अहम बात यह है कि आपका तखल्लुस है खावर, जिल्लुर रहमान से आपने रहमान लिया और खावर, तो ये तो ये तखल्लुस आपने खुद रखा, उस्ताद ने दिया? नहीं, मैंने खुद रखा, पहले निशात तखल्लुस था मेरा, वो मैंने अपने आप, वो भी अपने आप ही रखा था, और जब इस्लाह कराई तो उससे कुछ दिन पहले फिल्म में एक खावर, कौन खावर गाने लिखता था, तो मैंने कोई फिल्म देखी, मूवी बहुत देखता था, घर के साथ ही सिनेमा हॉल भी था, तो उसका नाम देख के मुझे खावर तखल्लुस बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अपना तखल्लुस। अच्छा, ये जी, आपने शायरी जब शुरू की तो ज्यादा गजलें कहीं, या उस वक्त गजलों के अलावा भी दूसरे? सभी कुछ कहा, लेकिन गजलें ही, लेकिन रसा साहब, रज़ाउर रहमान रसा, वो करम मिजाज तुम रामपुरी, और तो उनके किस्से, मसलन ये कि ये क्या, वो ये शबनम साहब ने सुना कि रजा साहब ने वहाँ वो करा लिया भाई, प्लेटफार्म पे मुशायरा, अब कोई किसी बड़े एक्टर को पता चला तो वो चेक करने आ गया, उन्होंने कहा
आसानी क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या तू अंदाज है मेरा मुशायरा हो गया, तो उसमें रिवर्स हो गए वो। ये मिजाज था उनका, और बहुत थे। और असर वो जो है अहमद फराज के बाप बर्क कोहाट थे, बहुत दूर की नहीं, और वो कोहाट से आके बैठते थे उनके पास। अच्छा, आपने बहुत लोगों के साथ, बड़े बड़े शायरों के साथ तो देखा होगा, तो कुछ बताइए किन किन बड़े नामों के साथ आपको पढ़ने का मौका मिला और कुर्बत का मौका? भाई ये यादाश्त में तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो कुछ नाम इसमें दीवार में कोट दिए उन्होंने लिखा रहमान खावर मुशायरे के सिलसिले में बहैसियत खावर रामपुरी, नू नारई मानी जायसी, दिल शाहजहांपुरी, मजरू, रविश, मजाज, जज्बी, सागर, वामिक जौनपुरी, हबीब अहमद सिद्दीकी बड़े शायर थे, और सलाम मछली शायरी वगैरह से अच्छी तरह मुतारिफ रहे। इनके अलावा उन्होंने शाद आरफी, अभी यहाँ देखिए मेरा निगाह, शाद आरफी, राज़ी अज़दामी, मौलाना इम्तियाज अली अर्शी, अब्दुल मजीद हैरन, अख्तर अंसारी देलवी, इलाही मासूम रजा, जावेद कमाल, खलीलुर रहमान आलमी, रशीद अहमद सिद्दीकी और असर लखनवी से भी बहुत कुछ सीखा। रिसालों के नाम अगर सामने फुनून में छपा, और फुनून में यहाँ अनवर शहूर ने मेरी गजल भेजी दो, फिर उसके बाद ना मैंने भेजी ना दो। अफकार में भूषण सर छपते थे, उनसे बैठक भी वही थी। सीप दोस्तों का निजारा, नसीम दुरानी और साकी, ये भी दोस्तों का, और शुजा, ये भी हमारे बड़े दोस्त थे। इसमें मुसलसल यानी कोई महीना होता नहीं था जो 2-3 गजलें कहीं ना कहीं छपी। तो अच्छा, नैरंगे ख्याल रावलपिंडी, नई कदरें अख्तर अंसारी अकबर आबादी, हमारे उस्ताद वो थे अख्तर अंसारी देलवी, छीन ले जिनका चेहरा मशहूर कि याद मावी अज़ाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, और कतात के माहिर थे, नया रंग दिया था कतात को। लेकिन जब ये आ गए तो इन्होंने भी यही नाम रख लिया, अख्तर अंसारी अकबर आबादी। तो किसी वो साकी फारूकी था, इस पे भी चलते रहे, साकी फारूकी ने इन पे बड़े शेर जड़े। तो एक शेर मुझे याद है कि मुल्क जब हुआ तकसीम अपने हाथ क्या आया, याद रखे वो अख्तर अंसारी अली वाले अकबर, वहां के अलीगढ़ के मेरे उस्ताद भी थे, वो पढ़ाते भी थे। मुल्क जब हुआ तकसीम अपने हाथ क्या आया, एक अख्तर अंसारी वो भी अकबर आबादी। ये 2-4 लाइनें कम है ये, लेकिन है इंतखाब। नरंगे ख्याल, नई कदर हैदराबाद, शाहराह देवी, ये पहले से चल रहा, पाकिस्तान आने से पहले। किताब यहाँ पे पहले थे, किताब लखनऊ, जामिया कराची, इम्तियाज कराची, इसे रईस वो भी इसकी सरपंच थे। रामपुरी के हमारे इकबाल रामपुरी निकालते थे। महानामा मशरिक, ये भी पाकिस्तान आने से पहले ही 2 गज़लें छपी, फिर इनसे दोस्ती बहुत रही, छपने जमाने खत्म। लौह कलम पेशावर, तहरीक दिल्ली, नई नस्लें लखनऊ, मेयार मेरठ, सबा हैदराबाद दतम, ख्याल कामठी, माह-ए-नौ लाहौर में इनका कलाम नजर आता रहा। रिसाला अक़दार, हाँ, अक़दार में तो हमारा अपनी किसी के आप ही का तो था, जी, उसमें हमारी बहुत चीजें छपी, बहुत छपा जी। अच्छा, ये बताएं आपने, हमारे साथ नकवी हमारे शागिर्द है। अच्छा, आपने भी जिक्र किया नकुश नकवी, आपके शागिर्द, आपने शागिर्दों का जिक्र करें, कौन शागिर्द हैं आपके जिनका में नाम आ रहा है? इसमें तो कोई नाम नहीं है अभी, नहीं, इसको
कोई सामने बैठा हो कोई मतलब ये कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, तुम उस्तादों में हो, मगर ये मानते हैं। और कभी कभी मैं भी कह देता हूँ, उससे मेरे कुंदे चौड़े हो जाते हैं। नहीं भाई, मैंने बिल्कुल खावर साहब से इसका भी लिया, खावर साहब इसके अलावा बहुत गाइड किया है। नाम लेके क्या करें। हमारी शायरी का शागिर्दी का मसला ये होता है, जब कोई खास तौर से शागिर्द वागिर्द, ये हमारा शागिर्द है, रागी मोरवादी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने शुरू में दोस्त होते हैं, शागिर्द होने का मतलब वो ज्यादा दोस्त होते हैं। आपने अब शुरू में गजल गई, फिर आपने और दूसरी असनाफ पे काम किया। ये बताइए कि आपकी जो शायरी थी इब्तिदा की और बाद की शायरी में आपको खुद क्या फर्क महसूस होता है, क्या तब्दीली आई? भाई हालात के तहत तो कुछ फर्क होता ही है, और उसके अलावा ये है कि उम्र के साथ साथ और पढ़ने लिखने के साथ साथ शायरी में पुख्तगी का कुछ सिलसिला होता जाता है। तो नतीजा ये होता है कि इब्तिदाई शायरी से इधर होता है। हालांकि जो जदीद लहजे का सिलसिला है उसमें शागिर्दों का या मेरे दोस्त मशवरा लेने वालों का एक बड़ा ताल्लुक है। नए और जदीद लोगों की शायरी अच्छी भी लगती है और ये करते हैं, इनसे सुनिएगा, ये जदीद और जदीद में आ गए हैं। हाँ, तो ये आपका जो आपका खानदान में जो शायरी का सिलसिला है वो रुका नहीं, आपके बाद मेरा एक भतीजे हैं अताउर रहमान, प्रोफेसर उर्दू कॉलेज के, वो हैं अभी वहाँ गुलशन इकबाल में, वो शायरी करते हैं। मेरा एक भांजा है राशिद हुसैन राशिद, वो शेर अच्छा खाते कहता है। तो अब ये सिलसिला है एक तरह से, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आज के जो जदीद शोरा है जिसमें आप उनका जिक्र हम सब शामिल हैं, वो रिवायती शायरी से थोड़ा दूर नजर आते हैं जी, और शायद उनकी जरूरत भी है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई जिसको जैसा अच्छा लगे उसको वैसे ही करना चाहिए। और जो शायरी अब उस्ताद हो या मशवरा कुनिंदा है, हम अपने हिसाब से देंगे और अपने हिसाब से क्या देंगे। तो मशवरा तो हम हर तरह का दे सकते हैं ना, इसी आयत में हम भी जी रहे हैं, इसी आयत में वो भी है। अच्छा, अगर हम इस आयत की बात करें, पिछले जो जब आपने शुरू किया था लिखना, उस वक्त की बात करें, तो अब आपके सामने जा रहे हैं वो तमाम चीज़ें आती हैं लोगों की जो लोग पहले लिखते थे। आपने पहले भी लोगों की हौसला दी, अब भी इसलाह देते हैं। आपको जो लोग अब लिख रहे हैं, पहले जो लिखा जाता था और अब जो लिखा जा रहा है, उसमें आपको कोई खास कोई बुनियादी फर्क नजर आता है? बुनियादी फर्क में ये है कि मजमून तो वही होते हैं, मज़ामीन में तो कोई फर्क नहीं होता। जो मैं हूँ वो आप कहने बराबर, बस लफ्जों का और टेक्निक का जरा अंदाजा बदल गया है, तो नयापन जदीदियत कह लो उसे। लेकिन बात जदीदियत ऐसी होती है कि पढ़ने नहीं पड़ती। नस्ली नज़्मों का सिलसिला चला तो 12 महीने एक्सेप्ट किया गया, ये भी एक तरीका नस्र है। उससे पहले अदब लतीफ एक शायरी की एक सिंफ होती थी, और साकी में बहुत तकरीबन नस्र टाइप की होती थी। मतलब एक जमाने में तो नस्र भी जो जुमले होते थे वो कोशिश की जाती थी कि हम काफिया रदीफ रहे, और एक उसमें वो तो शायरी डालते थे लोग, कुछ मिजाज होते थे शायर अदीब के अदीबों में, लेकिन बाकायदा नस्री शायरी का गोया इजरा होना एक अलग बात है। इसके अलावा ना, मैंने नस्री शायरी नहीं। अच्छा, आप की सबसे पसंदीदा सिर्फ कौन सी? गजल। वो खास वजह गजल को पसंद? भाई एक सिलसिला चल रहा है, जिधर देखो वो हदी है कि ये नहीं कोई कहता कि तू मेरी नज़्म है जाने पर। अच्छा, तो इस वजह से गजल पसंद है आपको? अब यहाँ मुझे मैं बैठता हूँ पार्क में, एक दिन एक खातून आ गई और उन्होंने बैठ के कुछ सवालात करना शुरू कर दिए। मैंने कहा आप अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम है गजल। और उन्होंने
साहिबाई सिलसिले की है वो, उनके रिश्तेदार वगैरह सरमद साहिबाई है, बड़े शायर हैं। और भी मैंने कहा मैंने उनसे मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं छत्ते चबाते जरूर हैं। अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी एक ये मुकालमा रहा है कि रुझान किस तरफ है, आपका अपना रुझान किधर रहा? भाई मेरी समझ में ही नहीं आया, लोगों ने रख लिया, फर्जी बात है ये कि अदब बराए अदब और अदब बराए जिंदगी, ये फर्जी बात है। जो पुराने मीर कितना पुराना है वो, अदब बराए अदब बराए उसकी वही जिंदगी अदब है, अदब का अदब है, जिंदगी की जिंदगी है, आपके सामने मौजूद है। वो वली भी है, सिराज भी है, फिर गालिब, जरा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब टोपी उतार के मरना पड़ेगा। तो सूरत हाल ये, वो सब अदब बढ़ाए, अदब भी है और अदब बढ़ाए जिंदगी है। कोई लफ्ज गालिब का जो है, कुछ तो लोगों ने उसके जो तनकीद करने वाले थे या बात उससे इस्तिफादा करने वाले, गालिब के बहुत से रंग निकाल लिए खुद भी। अच्छा ये बताइए, आप एक जैसे सनत तौशीह होती है, आप वो काम बहुत करते हैं कि आप जो मिसरे होते हैं उनको उनसे मिला नामों के हुरूफ लेकर उनसे आप मिसरे बनाते हैं। सनत तौशीह से मुख्तलिफ चीज है या भी पता नहीं, ऐसा नहीं है कि बना है, खुद ब खुद बनते हैं। अच्छा, अच्छा बनाते भी हैं, गजल बनाते भी बनाते भी है। गाने का शौक आपको कैसे हुआ? गाना तो ये बोलो, ये तो फिल्म देख के आपने बाकायदा गाया तो नहीं आपने? नहीं गाया ये कि पहला 5वीं क्लास में एक तकलीफ थी, मुर्तजा गवर्नमेंट मुर्तजा हाई स्कूल, उसका स्टूडेंट था मैं, तो आओ सबको मालूम था ये आवाज़ होती है, और ये शायरी में कुछ करते थे उस वक्त भी, निशात तखल्लुल में बता रहा। खैर तो हमें स्टेज पे बुलाया गया कि आप कुछ सुनाइए। मैं ये कह रहा था कि आप मुख्तलिफ और जो नई जिहतें हैं, नई असनाफ हैं शायरी में, जैसे हाइको हो गया या सोनेट्स हो गया या कोई और, आपने तो नहीं कहा, लेकिन आप अगर कोई शायर कहता है तो आपके ख्याल में कैसा है? क्या वो शायरी की जो रिवायात है उनसे चूंकि हट के है, नई चीजें आ रही हैं, क्या उनको कबूलियत मिलनी चाहिए या नहीं? क्या ख्याल? बिल्कुल मिलना चाहिए, बड़ा हमारी शायरी के दामन में वुसअत आ रही है। दूसरे जापानी हाइको है, उर्दू बनाया उन्होंने, उर्दू में बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कहे। मैं इत्तेफाक में नहीं कहता वही कि देश हमारे अंजुम साहब कहते थे, उनकी किताबों में है, हमसे जो बड़े उस्तादों में थे हमारे 2 अजनबी, उन्होंने हमारी बाकायदा देखी और मुशायरों पढ़ी। आपने जो असनाफ लिखी हैं कि आपने जिसमें काम किया, अफसाने भी बहुत, अफसाने लिखे, कितने अफसाने लिखे होंगे आपने? कब किस जमाने में? बहुत शुरू में अफसाने ही। अच्छा। और दोस्तों को सुना रहे हैं, उल्टे सीधे भी होते थे। फिर शायरी के साथ साथ शायरी गा के सुनाते थे, तो उसमें कम से वक्त भी चलता, जैसे फिल्मी होती है। तो लेकिन बाकायदा जब शायर हो गए तो फिर एहतियात भी, फिर मुशायरों में बहुत बुलाए जाने लगे। तनकीद भी लिखी आपने? तनकीद भी लिखी, वहाँ कम लिखी। एक तनकीद याद आती है, मैं यहाँ पार्क में बैठता हूँ तो गौतम बुद्ध के 2 मुजस्समे हैं और इनकी शक्ल उसमें शबाब नजर आ रही है। तुम देख रहे मुझसे पूछा अभी नजर आ रही है? गौतम बैठे बैठे खुदा बना दिया आपने। सर उड़ा दिया, चेहरा आना, तो इनकी शबाब यानी मेरे मिलने वालों में ज्यादा से ज्यादा ये है। तो खैर वो गौतम का हवाले से मैंने जो वो लिखे हैं, बहुत पुरानी बात है, आदर हफीज पे मरहूम लिखा, ये यही तनकीद नहीं बल्कि मज़ाक, उसमें मज़ामीन है जो मैंने लिखे। ये बताएं कि आपने दोहे भी लिखे हैं। जी तो दोहे, अब हमें दोहे लिखने वाले शायर बहुत कम नजर आते हैं, क्या उसकी वजह वो गंगा जमनी तहजीब पाकिस्तान में उस तरह नहीं आई,
اس لیے اس کے لکھنے والے کم ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ پتہ یہ ہے کہ لوگ ہائی کو ملتی جلتی چیزوں میں زیادہ چلے گئے. میں ہندی کا شاعر ہوں جی, ہندی کا کوی ہوں جو میں نے بہت ہندی کے مشاعرے پڑھے انڈیا میں, خاص طور سے میرٹھ میں نوچندی کے جو مشاعرے 2-3 بار جانا ہوا تو پڑھے وقت بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے بچن جی بھی آئے. تلسی کے دوہے مشہور ہیں کبیر کے, تو کیا ان دوہوں جو وہ دوہے لکھے گئے اور پھر کراچی میں ہمارے جمیل الدین عالی صاحب لکھتے ہیں تھے, مطلب ان کے دوہے خاصے مشہور تھے, آپ لکھتے ہیں, تو کیا ان میں کوئی فرق ہے ٹیکنیکلٹی کے حوالے سے, بہر وزن کے حوالے سے, یا ایک تو یہ کہ عالی جی تھے, انہوں نے جو دوہے لکھے ہیں وہ دوہے ایکچولی ہوتے نہیں تھے. دیکھو یہ ہے نا میری کتاب آپ کے سب کے پاس آئی, دوہے دوہا رنگ, وہ جو ہے وہ دوہا رنگ بنتی ہے, وہ بہر وہ جو ہے, اور اس طرح کے دوہے کہے لوگوں نے کہیں کہیں نکال آتے ہیں. کبیر کے ابھی لوگوں نے چھانٹ کے ڈھونڈ کے نکالے, ہمارے اس کی وجہ سے دد میں کہو یا سجانے کو کہو. تو اسی طرح جو ہے عالی جی یا ایک اور دل محمد دل تھے الجبر کے, وہ ان کے بھی یہ اسی طرح کے دوہے ہوتے تھے عالی جی والے, جو ہندی کی بحث ہٹ کرتے. اور عالی جی کے زمانے میں ہمارے سارے ہی دوہے کہنے لگے تھے وہی ہے نا. تو فلمی گانے میں بہت سے ایسے ہوتے تھے, مورے راجا والے چل ندیاں, اب اس کے بیچ سے تو بول رہے بالکل وہی دوہے. میں نے فیصل کا ہی مضمون پڑھا تھا, دوہا رنگ پہ آپ نے جو لکھا ہے وہ ریختہ پہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو اس طرح تو دوہے تو دونوں ہی اس میں ہیں. میں نے نام بدل دیا تھوڑا تھوڑا, دوہے اور دوہا رنگ. دوہے تو یہ ہے جو اصلی میں, اگر آپ کہیں تو ایک دو دوہے یہ اصلی دوہا جی, اس لیے کہ اس پہ زیادہ توجہ دی گئی. تو نیل گگن کی چھاؤں میں کیسے الٹے روح, نیل گگن کی چھاؤں میں کیسے الٹے روح, سورج میں ہے چاندنی اور چندا میں دھوپ. تو یہ بحث 2 ٹکڑوں میں جو ہے چھوٹے, یہ جو اصلی جتنے بڑے بڑے دوہا نگار ہیں پرانے ان کی یہ سب ہے. مورکھتا کی بات خود ارتھ یہی سمجھائے, مورکھتا کی بات خود ارتھ یہی سمجھائے, گیلی لکڑی جب جلے آگ دھواں ہو جائے. سب سے زیادہ جو میں نے جو اگر میں غزل بھی پڑھنی ہوں تو میں نے دیکھا آپ نے غزل سب سے زیادہ گئی, پھر آپ نے دوہے بہت کہا, گیت بہت کہا آپ نے, اور گیت لکھنے والے ہمارے یہاں بہت کم ہیں. گیت میں نے بہت کہے اور اچھے گیت ہیں میرے. میں یہی گیت ہندی میں کبھی سمیلنوں میں پڑھتا تھا, خاص طور سے انڈیا کی یہاں بھی پڑھے میں نے, وہ یہاں بھی کبھی سمیلن بھی ہوئے, اور ویسے مشاعروں میں بھی پڑھے. وہ گیت ایسے ہیں ترنم سے پڑھتا تھا تو اچھے. اچھا, جو نئے لکھنے والے ہیں اگر وہ مثلاً دوہے کے بارے میں آپ نے بتایا, نئے لکھنے والے ہیں وہ اگر گیت لکھنا چاہیں, وہ غزل تو سامنے کی چیز ہے, نظم بھی سامنے کی چیز ہے, گیت لکھنا چاہیں تو انہیں کس بات کا خیال رکھنا ہوگا لکھتے ہوئے, وہ غزل سے کس طرح اس کو الگ کریں گے یا نظم سے کس طرح اس کو الگ کریں گے؟ آٹومیٹک ہے اور بہت آسانی ہمیں فلمی گانوں نے کی ہوئی ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گانا ہے, یہ گیت ہے, یہ غزل گوائی گئی ہے لتا سے, یہ رفیع نے یہ گایا, تو ہمیں سب سے اب جو سننے والوں کو معلوم ہے یہ. اور رہا یہ کتابیں ہیں ہماری. اسلوب اور الفاظ جیسے گیت میں آپ کے گیت میں یہ ہے کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیے, ایک زمانہ تھا کہ جب یہ اردو کے بڑے شاعر گیت لکھتے تھے اور سب اردو میں ہوتے تھے گیت. وہ اب مجھے نام ذرا یاددار تو بہت سے شاعر تھے. تو ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ پچھلے دنوں آپ کی کتاب آپ نے مرحمت فرمائی تھی دعا کی, تو اس میں جو ہے وہ دھرتی کا بہت ذکر ہے, سجنی کا بہت ذکر ہے,
और बहुत सारी चीजों का जिक्र है। क्या कभी आपने पत्नी के लिए कुछ लिखा? हाँ, पत्नी भी बहुत है। देखो शायरी है तो बात मजाहिया में बहुत है मेरे पास। ये मजा अच्छा, मिज़ाह में आपने कब से शुरू किया कहना? शुरू से? इब्तिदाई मेरा और मैंने जो वो गजल का शेर सुनाया था ना उस्ताद पढ़ाने वालों का, उनका जी जी अता करता जी एक मैं अपना शेर सुना था फिरता था कि लिखवाई है उसने ये रपट थाने में जाकर, लिखवाई है उसने ये रपट थाने में जाकर, चौखट को मेरी तोड़ गया है कोई सर से। अच्छा, कोई में अच्छा, आप स्क्रिप्ट लिखते थे किसी जमाने में? वो रेडियो में तो हम ये अदील हामिद मदनी का जिक्र किया था जी। तो उन्होंने अपनियाँ ले लिया, छोटे मोटे स्क्रिप्ट हम लिखते थे, बड़े रईस फरूख। अच्छा, हाँ। किस तरह के स्क्रिप्ट होते थे? ड्रामे थे? मेरा तो इब्तिदाई ये था कि भाई इसके स्क्रिप्ट चाहिए था कि अभी आपने नूरजहां की आवाज़ में ये गज़ल सुनी, अब इनकी आवाज़ में ये सुनिए, म्यूजिक किसकी, शुरू में तो ये देते थे, फिर कुछ बड़े प्रोग्राम हुए उसमें बाकायदा दास्तान किसकी, तो 14-15 वो पूरी दास्तान होती थी वो, अच्छा, तो उसका एंड छोड़ दिया जाता था सुनने वालों के लिए। आपने कोई गजल निकाली? गजल सुनाऊं? जी गजल सुनाइए, गजल नहीं गजलें सुनाइए। तो जाने जी जरूर इरशाद। अंधेरों से न अब इतना भी पट जाए, अंधेरों से ना अंधेरों से न अब इतना भी पट जाए कि अपना घर मोहल्ले भर से कट जाए। अंधेरा अब ऐसे देखिए ना, अंधेरों से न अब इतना भी पट जाए कि अपना घर मोहल्ले भर से कट जाए, हम आंखें बंद ही रखें तो अच्छा, हम आंखें बंद ही रखें तो अच्छा, न जब तक नफरतों की धूल छट जाए। हम आंखें बंद, ऐसी मिजाज भी यही है मेरा, हम आंखें बंद ही रखें तो अच्छा, न जब तक नफरतों की धुंध छप जाए, और चढ़ाए जो अमर बेलों को परवान, जो लिपट जाती है पेड़ सूख जाते हैं, चढ़ाए जो अमर बेलों को परवान, शजर से क्यों ना ऐसी शाख कट जाए। नहीं कुछ नेक साहिल के इरादे, नहीं कुछ नेक साहिल के इरादे, नहीं कुछ नेक साहिल के इरादे, सफीना जानिबे तूफा पलट जाए। नहीं कुछ नहीं कुछ नेक साहिल के इरादे, सफीना जानिबे तूफान पलट जाए, जलाकर छोड़ दो, बुलाना कीजिए भाई, कि जलाकर छोड़ दो शम्में बहुत सी, जलाकर छोड़ दो शम्में बहुत सी, जलाकर छोड़ दो शम्में बहुत सी, मुकाबिल आंधियों के जो भी डट जा। जलाकर छोड़ दो शम्में बहुत सी, मुकाबिल, जलाकर छोड़ दो शम्में बहुत सी, मुकाबिल आंधियों के जो भी डट जाए। मुरादा चीजें के संभाले बोझ क्या हो आसमां का, संभाले बोझ क्या हो आसमां का, जमीन जो सैकड़ों हिस्सों में बट जाए। संभाले बोझ क्या हो आसमां का, जमीन जो सैकड़ों हिस्सों में बट जाए। और मकता है कि चलो बचकर रहे जाना से खावर, चलो बचकर रहे जाना से खावर, न ये जंजीर
पैरों से लिपट जाए, चलो बचकर रहे जाने खबर न ये जंजीर पैरों से लिपट जाए। आपके अशार में बसीरत बहुत है, इस जो आपने सारे पढ़े हैं, वो तो यूं है ना, और इससे लगता है कि आपका रुझान रिवायत पसंदी के साथ साथ जिद्दत पसंदी की तरफ भी है। भाई बात ये है ना, शायरी करे हमारा इख्तियार और कुछ न सही, शेर कहती मुमकिन है किसी के दिल को लग जाए और वो शेर जो है अमल में आ जाए और उस शेर से बुराइयां खत्म हो जाए। हमारे अपने इख्तियार में तो नहीं है कि अरे क्या कर रहे हैं आपने इस शेर कहा, तो उसी पे अमल कर रहे हैं। ये गलत है जी, ऐसा कर। इसको हमारे अल्लाह बख्शे कौन मसरूर जावेद जी, समझते हैं हमारा ज़र्फ कमलो समंदर की तरह गहरे हैं हम लोग। वाह वाह बहुत अच्छे, वाह वाह। समझते हैं हमारा ज़र्फ कमलो समंदर की तरह गहरे हैं हम लोग। और शेर देखिए हालात हमारे आपके, सफर कैसे कटेगा जिंदगी का, सफर कैसे ये करेगा। बहुत पुरानी लफ्ज़ें हैं मगर हालात वो मशहूर जावेदी इसके बाद कोई ज्यादा दिन के बाद नहीं बेचारे इंतकाल हुआ। सफर कैसे कटेगा जिंदगी का, बिछड़ते जा रहे हैं दम बदम लोग। सफर कैसे कटेगा जिंदगी का, बिछड़ते जा रहे हैं दम बदम लोग। और मिले जब दूसरों से तब ये जाना, मिले जब दूसरों से मिले जब दूसरों से तब ये जाना, गनीमत है जहां में अभी हम लोग। बहुत मिले जब दूसरों, अब ये ताल्ली के दायरे में नहीं आता क्योंकि मुकाबला है जी, कि मिले जब दूसरों से तब ये जाना, गनीमत है जहां, गनीमत है जी जहाँ में अब भी हम लोग। अब ये है यहाँ वो आती है, मेरे ध्यान में नहीं था, मैंने बताया ना कि हर्फ आया जी, बन जाते आपने हैं। जिक्र जी। किया, तो मसरूर जावे। मैं ऐसी दोस्ती से बाद आया, मैं ऐसी दोस्ती से बाद आया, करे अब हाल पर मेरे करम लोग। जी, मैं ऐसी दोस्ती से बाज आया। बाद आया, करें अब हाल पर मेरे करम लोग। और बहुत आसान है तकसीमे मयो जाम, बहुत आसान है तकसीमे मयो जाम, मगर ये मुब्तिलाए देशो कम लोग। बहुत आसान है, वो तो लोग लूटवार है ना, जी, बहुत आसान है तकसीमे मौजाम, मगर ये मुब्तिलाए बेशुकम लोग। करोड़ों लेके चला जा रहा है, वो हैरत है। जी, बहुत आसान है मगर अब मकता है कि ढला सूरज तो खावत याद आया, ढला सूरज ढला सूरज तो खावत याद आया, रुके थे छाँव में दम भर को हम लोग। ये बताइए कि आपके पसंदीदा शायर कौन है? कौन है? पहले पुरानों में। भाई पुरानों में भी मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ शायर अच्छे लगते हैं। जी, अब ये है कि मीर जो है उसको तो मैंने, मेरी एक इंटरव्यू हुआ था, या जो होते हैं ना वो नजमुल अतर लेते हैं, उसमें मैंने मीर को कहा, मैंने गालिब गालिब को उन्होंने कहा, गालिब को आपने मीर को बताया कि दी बेस्ट शायर वो है। मैंने कहा गालिब तो खुद मीर से इस्तिफादा करके गालिब बन रहा है भाई जी। तो हर तरह घूम के जब ऊपर जाएंगे तो मीर ही मीर नजर आएगा, नीचे भी। जी। आपका मजमून क्या था जब आप पढ़ाते उर्दू उर्दू अदब? जी उर्दू कौन से कॉलेज में पढ़ा है? पूरे 7 साल पढ़ाया। कौन से कॉलेज में? तो ये पढ़ाया हमने 4, लियाकत काली,
फिर वहाँ से सिटी कॉलेज में ट्रांसफर हुआ, नाज़िमाबाद में था सिटी कॉलेज, बदायूनी कॉलेज एक है वहाँ, औरंगी, वहाँ कुछ दिनों रहे। फिर वहाँ एक दिन खुद वो आ गए डायरेक्टर, पुराने जान पहचान भी थी उनसे, प्रिंसिपल रह चुके थे हमारे, तो इस वकील मैंने एक पर्चा बाहर से खड़े होकर दे दिया उनको लिख के कि भैया बड़ा परेशान हूँ, तो उन्होंने इस्लामिया में कर दिया गया। फिर वहीं से मैं रिटायर हुआ। आपने हुई उससे बात हो रही थी, आपने मुख्तलिफ असनाफ की बात की, आपने कविता की बात की। नज़्म होती है हिंदी में कविता, जी, नज्म को कहेंगे या गजल? नज़्म को कविता कहते हैं, नज्म, अच्छा। और जो शायरा होती है हिंदी में कहने वाली उसे कवित्री कहते हैं। हमने किसी महफिल में यहाँ कहा तो एक साहब बोले भाई कबूतरी की जगह कवि सम्मेलन क्या है? कवि सम्मेलन बहुत कुछ वहाँ इंडिया में। ये बताइए कि आपने सारे उस पे आपकी नातों का मजमूआ आया है, ये है हाँ, तो उसके मुतालिक कुछ बताइए कि नाते लिखना आपको कैसा लगा? नाते तो भाई हमारे अंदर जो है भाई मुसलमान होने का एक जज्बा होता है। आप सुनाइए, नात सुनाइए इसमें। सुनाओ जी सुनाइए। चलिए ये भी आप खोल दीजिए, इजाजत है। दुनिया के न दुनिया की ये दौलत के लिए है, दुनिया के न दुनिया की ये दौलत के लिए है, सीने में तो दिल उनकी मोहब्बत के लिए है। पलकों से गिरा है जो अभी अश्के नदामत, पलकों से गिरा है जो अभी अश्के नदामत, महफूज यही रोज़े क़यामत के लिए, महफूज यही रोज़े क़यामत के लिए है। और तुम राह मदीना में कदम रख के तो देखो, तुम राह मदीना में कदम रख के तो देखो, ये राह मदीना, ये राह तो दुनिया की क़यादत के लिए है। तुम राह मदीना में कदम रख के तो देखो, ये राह तो दुनिया की क़यादत के लिए है। ये नाम मोहम्मद के ज़माने में यकता, ये नाम मोहम्मद के ज़माने में यकता, ये नाम तो होठों की इबादत के लिए है। जो झूम के उठा है सरे साहिल बता, जो झूम के उठा है सरे साहिल बता, वो अबरे करम बारिश रहमत के लिए है। जो जिंदगी के सफर में नबी का ध्यान रहे, तो हर बलाए सरे राह से अमान रहे। जो जिंदगी के सफर में नबी का ध्यान रहे, तो हर बलाए सरे राह से अमान रहे। जब उनके नाम पे खोले हैं बादमा हमने, जब उनके नाम पे खोले हैं बादमा हमने, तो कश्तियों पे खुदा क्यों न मेहरबान रहे। जब उनके नाम पे खोले हैं बादमा हमने, तो कश्तियों पे खुदा क्यों न मेहरबान रहे। जो रहे कहाँ कोई दुश्वार दश्त जान का सफर, जो सर पर अबरे मदीना का साहिबान रहे। जो सर पर अबरे मदीना का साहिबान रहे। जो ख्याल में भी न आए बुलंदियां जिनकी, नबी के पाँव के नीचे वो आसमान रहे। ख्याल में भी न आए बुलंदियां जिनकी, नबी के पाँव के नीचे वो आसमान रहे। और ये उनसे दूर
मेरी जिंदगी का आलम है, वाह ये उनसे दूर मेरी जिंदगी का आलम है, चिराग जैसे हवाओं के दरमियान वाह है। वाह वाह ये उनसे दूर मेरी जिंदगी का आलम है, चिराग जैसे हवाओं के दरमियान रहे। उन्हीं के नाम का एजाज है कि आज तक, उन्हीं के नाम का एजाज है कि आज तक हमें जमीन पर रहकर भी आसमान रहे। उन्हीं के नाम का एजाज है कि आज तक हमें जमीन पर रहकर भी आसमान रहे। और दिया गया है मुझे दिल इसीलिए खावर, दिया गया है मुझे दिल इसीलिए खावर कि उनके नूर से मामूर ये मकान रहे। बस बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। और अब हमारा सिलसिला में हमारा महफिल है वो तकरीबन इख्तिताम पर पहुंची है। आखिर में आपसे एक बात करूंगा, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, आखिर में एक चीज पूछूंगा मैं, और वो मैं उसको पूछने वाला था जब उबैद दे रहे थे, ठीक है उबैद आ गए हैं तो आप फर्स्ट करने के नहीं आए, आंटी भी नहीं है अभी सामने, तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, उसके बाद फिर आपसे गजल सुनेंगे और फिर हम महफिल खत्म करेंगे। ये बताइए जवानी में इश्क वगैरह इन्हें मालूम है। चलो फिर नहीं बताइए। एक आदमी होता है ना, राजदार होता है ना यार दोस्त, उससे कुछ हो गया झगड़ा, उसने जो है पकड़ना शुरू किया हमारे अजीज वकारी, और जो हमारे गोया कच्चा छट्टा था उनको बताता था, तो उसका नाम है समीउल्लाह खान। तो वो अब यही काम करते हैं सारी जिंदगी, बहुत ज्यादा। और यही मैं यूं कह रहा हूँ कि इसी की वजह से, अब वो इश्क कह लो, मोहब्बत, अटैचमेंट, इसी की वजह से मैं जब जरा होश हवास में था, अब तो याददाश्त था, ये क्या बात आपकी तरह वजह से कर रहा हूँ, अब ये भूल गया कौन है वो, जिनसे इस तरह हो रहा है हमेशा। नहीं वो जो इश्क का एक दूसरा जरा हल्का ताल्लुक और क्या कहलाता है, वो उस हवाले में मतलब इश्क जो है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इश्क किया हो। एक इब्तिदाई ज़माना है हमारा, दोस्त के मोहल्ले में जाते थे तो एक वो गाने वाने गाते थे जरा अच्छा, तो एक लड़की उनकी जिंदगी बन गई पेशका वगैरह वो, अब वो उसको कुछ या तो पीछे से किसी ने वो किया होगा, अब वो आम के दरवाजे दे, हम भी उनके बदले फिर हमें भी चाबी कर दी, हम खूब शायरी आरी के जोर वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा अच्छा 5वीं क्लास में हो, 5वीं क्लास में शायरी में वजन वहाँ से आया फिर। हाँ। और तो ये शायरी आपकी जो शुरू हुई है, ये वहीं से शुरू हुई है असल में? नहीं, पहले से करते तो होंगे जी, मगर ये कि जरा जोर आया कि भाई एक सेंटर पर, अच्छा हुआ क्या करता, नाम उसका लोगों बताते हैं कि तो रैया था, वो खुद क्या और बता किसी ने नहीं, किसी लोगों ने हमें लोग थे कि हम हाथों में दावत होती थी हमारी शमीर, मगर उस इलाके में जितनी शमीरें थी सब वो सेट हो गई। लोग समझ रही है कि ये शमीर ने इनका पर्दा बनाया हुआ हमारे। तो एक तो मरीज में जब 97 में वापस पाकिस्तान आया ना, उनकी शादी हो गई थी मेरे वही के दोस्त के बड़े भाई से, और वो भी दोस्त बहन थी शमीर, खाना वाना खाया उनकी यहाँ तले। आज तो एक और रामपुर के मुल्ला भाई कह रहा था, वो भी आगे कहीं से, तो खा के हम लोग निकल गए। यहाँ आके मैंने पता चला कि वो शमीम इंतकाल कर गए, अच्छी खासी ठीक ठाक। तो उन्होंने मुल्ला भाई ने बताया, अरे ये शमीम ही थे, उसका मियाँ भी बढ़ गया यार। मैंने कहा यार हमारा खाना तो उनको रास नहीं आया। खाना आपने खिलाया था या उन्होंने खिलाया। अच्छा तो हम गए थे ना होटल में गए थे। अच्छा चलिए अब हम आपसे एक चलते तो इसमें नहीं जी, अटैचमेंट। अच्छा हम आपसे गजल सुनना चाहेंगे, ये वाली अगर आप इनायत करें। बहुत दिन बाद ये मुझ पर खुला है
कि मुझ पर आज भी वो दर खुला है। वाह वाह बहुत दिन बाद ये मुझ पर खुला है कि मुझ पर आज भी वो दर वो दर खुला है। वाह वाह वो सरगर्दा है मेरी जुस्तजू में, बहुत अच्छे। वो सरगर्दा है मेरी जिस्म मेरी जुस्तजू में, मेरी आंखों पे क्या मंजर खुला है। वाह वाह वो सरगर्दा है मेरी जुस्तजू में, वाह और मैं ये किस आलम में उसको देखता हूँ। किस साल ये किसी के लिए मैंने सामने रखी गई थी, जी। कराची में गई है शायद, जी कि ये किस आलम में उसको देखता हूँ कि नंगे पाँव है और सर सर खुला है। वाह वाह बहुत ही ये किस आलम में उसको देखता हूँ कि नंगे पाँव है और सर खुला है। बहुत सहमा हुआ रहता था पहले, बहुत सहमा हुआ रहता था पहले, मोहब्बत करके उसका डर खुला है। वाह बहुत सहमा हुआ रहता था पहले, वाह मोहब्बत करके उसका डर खुला है। जो ओझल है जमाने की नजर से, वो सूरज की तरह मुझ पर खुला है। वाह 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 वाह। जो ओझल है जमाने की नजर से, वो सूरज की तरह पर खिला है मुझ पर खुला है। और खामोशी कह गई है राज दिल के, खामोशी कह गई है रात खामोशी कह गई है राज दिल के। रात दिल न खुलकर भी कोई अक्सर खुला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खामोशी कह गई है रात दिल की, न खुलकर भी कोई अक्सर खुला है। और बदन है या कोई खुशबू मुजस्सम, बहुत अच्छे। बदन है या कोई खुशबू मुजस्सम, कि जिसका लफ्ज बाहों पर खुदा है। वाह बदन है या कोई खुशबू मुजस्सम, वाह कि जिसका लफ्ज बाहों पर खुला है। वाह और सफर में कश्ती जहाँ है अभी तो, सफर में कश्ती है अलिफ्ते है, ये हो गया। सफर में कश्ती जहाँ है अभी तो बाद खावर खुला है। वाह भाई ये गजल इसमें लिखा हुआ है। जी 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 ये गजलों की किताब आखिरी है। दिल क्या है जो हम आपका दमसाज नहीं है, एक साज है जिसकी कोई आवाज नहीं, वाह और मांगी है यकीनन तेरी रफ्तार से शोखी, वाह बहुत ही अच्छे। मांगी है यकीनन तेरी रफ्तार से शोखी, खुद बाद सबा का तो ये अंदाज नहीं। वाह वाह बहुत ही खूबसूरत मांगी है यकीनन तशबीह। तेरी रफ्तार से शोखी, खुद बाद सबा का तो ये अंदाज नहीं है। और वाकिफ ही नहीं इसके अंदाज से शायद, वाकिफ ही नहीं इसके अंदाज से शायद, वो जिसको जफाओं पे तेरी नाज नहीं है। वाकिफ ही नहीं इसके अंदाज से शायद, वो जिसको जफाओं पे तेरी नाज नहीं है। और शेर है अनु भाई, चौंक उठा हूं मैं दिल के धड़कने की सदा से, चौंक उठा हूं मैं दिल के धड़कने की सदा से, दर पर कोई आहट कोई आवाज नहीं। बहुत ही अच्छे। हेलो, वाह चौंक उठा हूं मैं दिल के धड़कने की सदा से, दर पर कोई आहट कोई आवाज नहीं। से मजमून बहुत जगह है मगर अलग अलग। छूटी है अभी नकते गुल
قید چمن سے چھوٹی ہے ابھی نخط گل قید چمن سے سمجھو کہ بس اب راز چمن راز نہیں چھوٹی ہے ابھی نخط گل قید چمن سے سمجھو کہ بس اب راز چمن راز نہیں ہے اور غم دے کے مجھے کیوں وہ پریشان ہے خاور غم دے کے مجھے کیوں وہ پریشان غم دے کے مجھے کیوں وہ پریشان ہے خاور غم میری وفا پر اثر انداز نہیں یہ صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آیا ہوں خواتین و حضرات آپ نے ابھی دیکھا کہ کتنی برجستہ بے ساختہ گفتگو ہوئی رحمان خاور صاحب سے اور یہ گفتگو وہی کرتے ہیں جو ہمیشہ چاہے وہ مشاعرہ ہو چاہے نجی محفل ہو چاہے کسی دوست احباب کی محفل ہو ان کا انداز تبدیل نہیں ہوتا اور یہ اللہ کی دین ہے ان کے ساتھ تو بہت بہت شکریہ خاور صاحب کہ آج آپ نے ہم لوگوں کو ٹائم دیا آپ نے شکریہ کون سن رہا اچھی بات ہے نہیں سن رہا تو انشاءاللہ ابھی ہمیں کچھ دیر ہوئی کووڈ کی وجہ سے سلسلے اتنے عام نہیں ہوئے ہیں تو یہ پہلا موقع ہے کہ ہم لوگوں نے مل بیٹھ کر کے 1.5 سال کے بعد کوئی تقریب کی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے علاوہ فیصل عظیم جنید اختر انور کاظمی صاحب اور عبید آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس محفل میں شرکت فرمائی اور انشاءاللہ ہم یہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے ارباب قلم کی طرف سے ہم سب کو اجازت دیجیے اللہ حافظ